Hello everyone. In this video, we will start chapter 1 of class plus 1. Topic is sets. We use the word set in daily life, like we take examples. First, if we take collection of books, or a pack of cards, or if we take a bunch of flowers. We can see that these three examples represents a group or a collection. So in simple language we can say these forms a different type of sets, but in mathematical set has a different definition. So what is the definition of set? A set is a well defined collection of objects. ये आपके पास एक ऐसी कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की जो कि वेल डिफाइंड है. अब what is well defined? Well defined means that shouldn't change from person to person. So set आपके पास क्या है? एक ऐसी कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती. फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ये एक ऐसी कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होती. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. लाइक अगर मैं आपकी क्लास में किसी से पूछूं कि टॉप थ्री एक्टर्स इन बॉलीवुड. मान लो मैं राम से पूछूं कि आपके अकॉर्डिंग टॉप थ्री एक्टर्स कौन से हैं बॉलीवुड में. उसने बताया कि अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर एंड शाहरुख खान. अगर मैं श्याम से पूछूं तो श्याम के अकॉर्डिंग जो टॉप थ्री एक्टर्स हैं वो हैं शाहरुख खान, रणबीर सिंह एंड ऋतिक रोशन. सो ये आपके पास कलेक्शन तो है ऑब्जेक्ट्स की. स्टूडेंट्स, हियर ऑब्जेक्ट्स मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. हमेशा हम नॉन लिविंग के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं यूज करेंगे. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमंस की बात हो रही है ना. तो ये आपके पास एक ऐसी कलेक्शन तो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की, और बट ये वेल डिफाइंड नहीं है. सो दिस विल नॉट फॉर्म अ सेट. ओके. Take another example. Vowels in English alphabet. English alphabet. अगर मैं आपकी क्लास में किसी से भी पूछूं कि vowels कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में. We know that how many vowels are there? 5. Which one? A, E, I, O and U. अगर मैं आपकी क्लास में किसी से भी पूछूं कि वॉवल्स कौन कौन से होते हैं तो सभी का आंसर ही सेम आएगा. सो ये आपके पास एक ऐसी कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रही. तो ऐसी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस विल फॉर्म अ सेट. ऐसी आपके पास काफी सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, वो हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे. There are some remarks. First one is collection of qualitative attributes such as honest persons, intelligent students, rich persons and good players. These don't form a set because we can't judge or measure the intelligence of a person, honesty of a person. If we talk about intelligence, a person or a student may be intelligent in some particular topic or not less interested in other topic. So we can't say that these type of qualitative attributes form a set. Next one is sets are generally denoted by capital letters. जो set होते हैं उसे हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से. जैसे कि कैपिटल A, कैपिटल B, X, Y, etc.
and elements of a set are generally denoted in small letters. अब what are elements? अब आपके पास हमने एग्जाम्पल ली थी सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. तो कौन कौन से थे? ए, ई, आई, ओ, यू. Here this set we can denote it as capital A, and here these A, E, I, O and U, these are called elements of a set, or we can say these are objects of set. Okay, after the definition of a set we will see how we can represent a set. Before starting the representation of a set, we will know about some symbols that are used to form a set. First one is belongs to. This is denoted as this. If we take same example, set of vowels in English alphabet, A, E, I, O, U. We know that a set is represented by capital letters, and these A, E, I, O, U are elements of a set. So how we can use this belong? We can say that A belongs to capital A. If an element is a set, then we can say that this belongs to the set A. अगर मैं पूछूं कि B जो है वो कैपिटल A में बिलोंग करता है, so we say that this doesn't belongs to capital A. So second symbol is doesn't belongs to. The next one is for all, and fourth one is this such that. Fifth one is comma, we can use it as and. We will discuss these three in the types of sets. Now we can represent a set as a tabular form or set builder form. First one is tabular form, और इसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म भी. इसकी डेफिनेशन क्या है? इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो सेपरेटेड होते हैं बाय कॉमास, और हम इसे इनक्लोज करते हैं बाय करली ब्रेसेस. एलिमेंट्स दैट आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड विथ करली ब्रेसेस, दिस फॉर्म इज कॉल्ड टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. डेफिनेशन से ही पता चल रहा है टैबुलर फॉर्म मतलब जिसे हम टेबल की फॉर्म में लिख सके. सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड. सेट बिल्डर मतलब जिससे हमें अभी सेट बिल्ड करना है, सेट जो है वो बना नहीं हुआ, उसे हमने बनाना है. इसकी डेफिनेशन क्या है? वी राइट अ सेट बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स. ये जो है ये सेट कैसे बनता है? सारे एलिमेंट्स जब एक स्पेशल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके लिखे जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म. लेट अस टेक सम एग्जांपल. जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस की थी सेट ऑफ ऑल वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. तो अगर हम इस टाइप से लिखें सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड विथ करली ब्रेसेस, सो दिस फॉर्म इज टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. अगर हम इस टाइप से लिखें तो वो आपके पास क्या होती है? टैबुलर फॉर्म होती है, और इसे हम और भी क्या कह सकते हैं? रोस्टर फॉर्म. ओके. और जो सेकंड वन क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, जिससे अभी हमने सेट को बिल्ड करना है. तो इसकी एग्जांपल ये वाली, दोज एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट. इसमें वो वाले सारे एक्स आएंगे जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे. डेफिनेशन में यही था ना, वो वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे आपके पास जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास वो वाले सारे एक्स आएंगे सच दैट, ये हमने सिंबल्स डिस्कस किए थे ना, सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट. Hope you understand all the topics that we discuss in the video, and in the next video we will do NCERT questions. Thank you for watching.